Yes students, in yesterday's lecture we studied about the upper part of respiratory tract. So today we have to study about the next part. So this is the trachea. Then trachea divide into left and right portion. कब? At the time of fifth thoracic vertebra. ये पीछे thoracic vertebra है, हम उसमें पढ़ेंगे आगे. This divide further into left and right side. So we know this side is right. तो ये हो जाएगा primary bronchus and this is primary bronchus. ये हो गया हमारे पास लेफ्ट और ये हो गया राइट. That means right primary bronchus, left primary bronchus. Now this primary bronchus divide further into secondary bronchus, and this secondary bronchus further divide into tertiary bronchus. So here this is the primary bronchus, then this is the secondary bronchus, then this is the tertiary bronchus. That means many branches arise from primary bronchus, then secondary bronchus and tertiary bronchus. Now these tertiary bronchus further terminate होते हैं एक और structure पे, that is known as bronchioles. That is known as bronchiole. Okay. Now on one bronchiole, there are many balloon-like structures. They are known as एल्विलाई. नॉन ऐसे तो ब्रोंकियोल से जो एल्विलाई जुड़ी होती है वहां एक डक्ट होती है, दैट इज नोन एज एल्विलाई डक्ट. तो ये हो गया हमारे पास एल्वियोलस. ओके, एल्वियोलस इज सिंगल. इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ एल्विलाई तो इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक. सो ट्रैकिया, primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchiole, alveoli duct, alveolus. Now this part, two bronchioles, is supported by incomplete cartilaginous rings. Incomplete cartilaginous rings, that means incomplete कैसे है, आगे की तरफ से सिर्फ आधा ऐसे है and made up of cartilage. तो ये हो गए cartilaginous rings, and these cartilaginous rings prevent this from collapsing. Okay, तो trachea, bronchiole, bronchus, bronchiole, इतना पार्ट है. दिस इज नॉन एज कंडक्टिंग पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट में विच कंडक्ट द एयर, एंड द एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई ये है. दिस इज नॉन एज respiratory part. Respiratory part में there is a exchange of gases, और इसमें कंडक्ट करता है एयर को ड्रॉन इन और ड्रॉन आउट करेगा, एयर को क्लीन करेगा, कूल करेगा. ओके, एंड देन सेंड टू दिस एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलस. नाउ एक्सेप्ट दिस ट्रैकिया, ये बाकी का जो पोर्शन है दे फॉर्म द लंग्स. वो क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं. नाउ दीज लंग्स आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन. सो दिस इज नोन एज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज इनर प्लूरल membrane. In between two membrane there is a fluid known as pleural fluid. Okay, then the downside of these lungs, here a dome shaped structure, जगह नहीं है ये बना रहा हूं. A dome shaped structure is known as diaphragm.
दिस डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है. Okay, function will see in exhalation and inhalation. So ट्रैकिया डिवाइड होता है 5th thoracic vertebra पे लेफ्ट एंड राइट. प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, alveolar duct, alveoli. Alveolar duct, alveoli, they form the respiratory portion and rest they form the conducting portion. They are covered by a membrane that is known as pleural membrane. डबल membrane है, in between there is a pleural fluid. ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. ओके, नाउ they are, these structures are present in a airtight chamber and that airtight chamber is known as thoracic chamber. Now come to thoracic chamber कि वो क्या है. thoracic chamber जिसमें lungs present है. Now see, this is the front part, this is the back part and this is the side view. Now see this side view. Here these are the lungs. एक ही लंग दिखेगा तब साइड पे देखेंगे. If we talk about the front side of lung, तो ये supported by a bony structure that is known as sternum. sternum क्या करती है, बहुत सारी जो रिब्स हमको आपस में जोड़ती है. ओके, और उसका जो पोस्टीरियर एंड है यानी कि डोर्सल साइड है वहां पर होता है वर्टिब्रल कॉलम एंड द लेटरल साइड होती है, वहां होती है रिब्स. ओके, अब यहां से ऐसे देखोगे तो ये रिब्स ऐसे आपको दिखाई देगी. देन हियर द सेंटर देयर इज स्टर्नम, द बैक साइड देयर इज वर्टिब्रल कॉलम और उनके बीच में क्या है, लंग्स है. ओके, देन स्टर्नम कहां पर है, वेंट्रल साइड पर, ये है डोर्सल साइड पर. देन रिब्स आर ऑन लेटरल साइड है एंड डाउनवर्ड यहां पर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज डायाफ्राम. ओके, तो दिस थोरेसिक चैम्बर फॉर्म में एयर टाइट चैम्बर बनाता है और उसके अंदर क्या है हमारे पास, वी कैन से लंग कैविटी और लंग कैविटी ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी कैविटी. अब ये पल्मोनरी कैविटी है, इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, कैसे होगा अब देखो. तो ये ध्यान से देखना, थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है. आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड रिब्स है, डाउनवर्ड क्या है, ये है. अंदर इसके क्या हो गए, लंग्स हो गए. नाउ सी, these are the ribs with sternum. Okay, in between two ribs एक मसल्स है, they are known as intercostal muscles. Okay, दो चीजें हैं इनके बीच में, यहां पर मसल्स है, they are known as intercostal muscles. अब ध्यान से देखना, एक मसल है ऐसी, एक है पीछे. ओके, और ये है बीच में. ये दो रिब्स है, मार्कर आर द रिब्स. कुछ मसल्स इसकी आगे की तरफ है ऐसे, कुछ मसल ऐसे पीछे की तरफ है और कुछ ऐसे बीच में. तो जो बीच में है दे आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल और जो बाहर है दे आर नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. बाहर वाली एक्सटर्नल और इनर वाली इंटरनल. तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, जो इसके बाहर है ऐसे, दे आर नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स
और इसके पीछे की तरफ आने के अंदर की तरफ लंग्स की साइड में, दोनों साइड से देखो चैम्बर को, यानी कि ये स्टर्नम है, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम के ऐसे बाहर, स्टर्नम के ऐसे बाहर, उनके अंदर वाली जगह में दोनों तरफ लंग्स के वो होगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसके अंदर की तरफ है, मैं ऐसे बना रहा हूं, दे आर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है, बात आई समझ में। अब इनका भी रोल होगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें होगी, स्टर्नम, रिब्स, 3 टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल। देन पीछे क्या है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम है, और नीचे क्या है, डायफ्राम है। नाउ कम टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसमें हमारे पास क्या है, इंस्पिरेशन है, देन एक्सपिरेशन है। ओके, इंस्पिरेशन मीन टेकिंग इन O2 rich air, taking out या release out CO2 rich air। सिंपल रूल ऑफ डिफ्यूजन है, गैसेस का डिफ्यूजन है कि दैट मीन जो गैसेस है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मेरे पास कोई चैम्बर है और उस चैम्बर का मैं एरिया बढ़ा दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, दैट मीन इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्या होगा यहां पर इंस्पिरेशन के टाइम पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाहर वाली ऐसी, तो वो रिब्स को बाहर खींचेगी, तो दैट मीन दे विल पुल रिब्स आउटवर्ड। जैसे ही रिब्स को आउटवर्ड पुल करेगा तो पीछे से भी वो उसको रिब्स को पुल करेगा, तो उससे जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और वो हो जाएगा डाउनवर्ड एंड फ्लैट। इसे डोम लाइक स्ट्रक्चर, जब इंस्पिरेशन होगा, इनहेलेशन होगा तो ये ऐसे नीचे जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है। लाइक नाउ मैं नॉर्मल हूं, जब मैं इनहेल करूंगा लाइक, तो ये होगा ऐसे नीचे, तो डायफ्राम डाउनवर्ड फ्लैट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकोस्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को बाहर की तरफ पुल करेंगे। तो अब दोनों तरफ से मैं किसी चीज को ऐसे पुल करूं तो ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो थोरेसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि लंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आउटसाइड प्रेशर क्या है, मोर प्रेशर। इतनी गर्मी है, फैंस और सब कुछ ऑफ है, वो चलाऊं तो आवाज नहीं आती। आज तो कोल्ड भी हो गया, तो कितना बुरा हाल हो रहा है, और तुम पढ़ते नहीं हो। इंस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। देन दे विल पुल द रिब्स आउटवर्ड, आगे से भी पीछे से भी। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डाउनवर्ड होगा, फ्लैट होगा। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लास 9 में पढ़ा होगा
तो बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो एयर क्या जाएगी अंदर। क्लियर है। इसका जस्ट ऑपोजिट है एक्सपिरेशन में। एक्सपिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी, जो पुल हुआ था ये वापस बैकवर्ड जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, अपवर्ड आएगा, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो फोर्स करेगा एयर को आउटसाइड। क्लियर है, बात समझ में आई। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, ये आपको ऐसे एक टेबल बनानी है जिसमें आप ये दोनों चीजें दिखा सको कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर है, ये सारा करना आपको।